Okay, so let's start with our second chapter, chapter 2, that is polynomials. Polynomials. About this chapter we have studied in ninth standard also, ना ninth में भी हमने पढ़ा था about polynomials. The same things we will be continuing here also. Now basically when we say we are having some polynomials, see जब हम polynomials की बात करते हैं ना, what we look, क्या चीज़ हम देखते हैं, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं वेरिएबल्स पे. ओके, टू थिंग्स यू शुड रिमेंबर अबाउट, वन इज वेरिएबल, सेकंड इज कांस्टेंट. ओके, फ्रॉम योर 6-7 स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, है ना, पढ़ते हो तुम इन चीज़ों के बारे में. वेरिएबल दैट इज़ नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड वैल्यू, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, एंड कांस्टेंट दैट इज हैविंग सम फिक्स्ड वैल्यू 6, 7, 8, 4 समथिंग लाइक दैट, है ना. कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट. बट वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है. सपोज वी आर हैविंग समथिंग एज x+5. ओके, नाउ इन दिस वन दिस 5 इज व्हाट, कांस्टेंट. ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होगा ही नहीं, इट विल बी 5. But if we are having this x is what, it is a variable, so it can take any value. ये कोई भी value ले सकता है. We can put x equal to 1, then the whole answer will be 6. If we are putting x equal to 2, then it will be 7. Like this we can take any value for this x. Okay, now when we are talking about polynomial, so a polynomial is what, एनी एक्सप्रेशन. सी इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. देखो सबसे पहले ना हमारे पास ना कुछ चीज़ें होती हैं, वन इज एक्सप्रेशन, वन इज इक्वेशन. ओके, सो फ्रॉम दीज यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज पोलिनोमियल, विच इज नॉट अ पोलिनोमियल. सपोज आई एम हैविंग एनी एक्सप्रेशन विद होल नंबर, एक्सप्रेशन विद होल नंबर. ओके, होल नंबर एज डिग्री. कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, होल नंबर होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पॉलिनोमियल. उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं. सपोज देखो मैंने लिखा x रेज टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 1. ओके, दिस इज व्हाट, आई कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स है ना यहाँ पे, उसकी डिग्री क्या है, दैट इज अ होल नंबर. ओके, यू कैन सी वेरिएबल यहाँ पे x है, डिग्री इज व्हाट 3 एंड 3 इज व्हाट होल नंबर. then variable is what, x degree is what 1, so it is a whole number. So any expression having the power of the variable as whole number is what, a polynomial. Suppose sometime you will see this kind of question also, x raised to power 3 by 2 minus 2x plus 1, is it a polynomial? You will say no, because the degree of the variable is what, it is in the form of p by q, so it is not a variable. Sometime you will see like polynomial, sometime you will see like 2 upon x raised to power 3 minus 3x plus 5, like this you will see. So then they are asking, is it a polynomial? You will say no, it is not a polynomial, because when we will take this x in the numerator, then it will be what, 2x raised to power minus 3, and minus 3 is not a whole number, it is an integer. So you should be confirmed about what is a polynomial first, when we are having all the powers of the variable as whole numbers. Okay, if there is whole number, then it is what, polynomials. Okay, तो वो polynomials होता है, otherwise it is only a expression. उसके अलावा जो भी होगा वो सिर्फ एक expression ही होता है. Then now in polynomials also you are having some different kind of polynomials like monomials, binomials, trinomials. Okay, so these are different kind of polynomials you are having, monomials, binomials, trinomials. Monomial is what, which is having a single term. Okay, only a single term is there, one term is there, that is what, monomial. Binomial which is having two terms, जब दो terms की बात करते हैं binomials, when three terms are there, trinomials. Okay, then if we are talking about polynomials, that is having one or more term, one term है तब भी वो polynomial रहता है, but two terms है, three terms, four terms, कितना भी हो सकता है, that will be a polynomial. So if one term is there, suppose I am writing x raised to power 100,
if I am writing x raised to power 5, okay, only one term I am writing. If I am writing y raised to power 3, so that is what? A monomial. It is not having any addition subtraction sign. ओके, बिकॉज इफ वी आर राइटिंग एनी टू टर्म्स ना, देखो अगर हम दो टर्म्स लिखेंगे तो हम लोगों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ करना पड़ेगा. सपोज आई एम राइटिंग 3x रेज टू पावर 3 प्लस 5x. नाउ इट इज हैविंग टू टर्म्स. ओके, आइदर आई कैन राइट y रेज टू पावर 4 माइनस 2y. This is a binomial. Two terms are there, that means binomial. But sometime na they will ask you like this: y raised to power 3 upon 3. Is it a monomial, binomial, trinomial? क्या है ये? It's a monomial. मोनोमियल ही है वो, क्योंकि एक ही टर्म है, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहे हैं. This is only a monomial. This 1/3 is what? It is the coefficient of y raised to power 3. है ना. कोफिशिएंट भी रिमेंबर रखना है तुम लोगों को, ये याद रखना क्या होता है कोफिशिएंट. ओके, सो कोफिशिएंट इज व्हाट? विच इज विद द वेरिएबल. वेरिएबल के साथ कुछ भी जो हमारा कांस्टेंट अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट बोला जाता है. देन सिमिलरली इन दिस एक्सप्रेशन इफ दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, सो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2. यू हैव टू पुट द साइन ऑल्सो, साइन भी यूज करना है. सो दिस इज व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन. इन 9th स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट पॉलिनोमियल्स, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन अ गिवन वेरिएबल, देन हाउ टू मीन्स कन्वर्ट, हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल इफ इट इज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो दीज थिंग्स वी विल कंटिन्यू हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी वही करेंगे. नाउ मूविंग टू सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. देखो इसकी ना हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है. हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल ग्राफिकली. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, सिंपल. देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं है. अगर तुम लोग ना एक पॉलिनोमियल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो, सपोज यू आर हैविंग अ सिंपल पॉलिनोमियल, आई एम टेकिंग x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन इट इज. हाँ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? वी विल बी हैविंग -3, and you have to represent -3 on a graph paper. Then what you will be doing? You will just simply draw two axes, then 0 1 2 3 4, then 1 2 3, -1 -2 -3. okay, you will draw a dot here only. okay, that means what? If we are taking x as a variable, okay, if we are taking x as a variable, then the value of x will be represented on which axis? On x axis. Same thing you have to count for y also, है ना. Sometime they will give like this also ना, y square -4 equal to 0. So y square will be equal to what? +4, and y will be equal to what? +2. Because y square is 4, that means y can be +2 or -2, दोनों कुछ भी हो सकता है. So in this case you will be putting one point at +2. तुम लोग यहाँ पे +2 पे एक पॉइंट लेके आओगे इधर, और एक पॉइंट कहाँ पे लेके आओगे? -2 पे लेके आओगे. दैट मीन्स व्हाट? दिस टाइम द ग्राफ इज कटिंग ऑन 2 एक्सिस. दैट मीन्स वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y? वी आर हैविंग 2 वैल्यूज. सी, इफ y वेरिएबल इज देयर, अगर y वेरिएबल है, दैट मीन्स यू विल बी लुकिंग एट द y एक्सिस ओनली, and if x variable is there, you will be looking at x axis. Then how many times the graph is cutting on x axis or y axis? That is called as what? Number of zeros. उसको बोला जाता है number of zeros of the given polynomial. जो भी तुम्हारा given polynomial होगा ना, उसकी कितनी zeros आने वाली हैं, ये किस चीज़ से पता लगता है? कितनी बार ग्राफ पे x एक्सिस या y एक्सिस पे वो उसको कट करते हैं. देखो एक ना ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे. सपोज मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ओके, एंड इट इज समथिंग px. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली px, एंड आई एम आस्किंग हाउ मैनी जीरोज ऑफ दिस px इज देयर. कितनी जीरोज हैं इस px की यहाँ पे? देन यू विल बी लुकिंग फॉर वन थिंग ओनली, हाउ मैनी टाइम्स दिस ग्राफ इज कटिंग ऑन व्हाट? x एक्सिस. x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहे हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम,
4 टाइम. सो यू विल बी राइटिंग दैट फॉर दिस पी एक्स, ये वाला जो पी एक्स है हमारे पास जिसके लिए ये ग्राफ है, इसकी कितनी जीरोज आएंगी, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4 जीरोज आएंगी. ओके, समटाइम यू विल गेट पी वाई, दे विल बी राइटिंग फॉर पी वाई हाउ मेनी जीरोज आर देयर, only 1 zero is there for py because the graph is cutting only at 1 point. ये वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा, दिस वन, यहाँ पे कट कर रहे हैं. सो इफ़ दे आर आस्किंग, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट पी वाई यू हैव टू चेक द वाई एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स इट इज कटिंग ऑन वाई एक्सिस, एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट पी एक्स देन ऑन एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स इट इज कटिंग. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूछते हैं वो लोग ग्राफ देने के बाद कई बार ना ऐसा क्वेश्चन, समटाइम व्हाट दे विल डू, ऐसा ग्राफ दे देंगे तुम लोगों को यहाँ पे, और ओरिजिन से पास हो रहा है ये, ठीक है, जस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड दे आर आस्किंग व्हाट हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर पी एक्स, पी एक्स के लिए कितनी जीरोज आएंगी यहाँ पे, यू विल बी राइटिंग 1, नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी एक्स इज 1, एंड फॉर वाई एक्सिस दैट मीन्स पी वाई के लिए भी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 1 आएंगी. सो दिस इज अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. इफ दे आर आस्किंग अबाउट एक्स देन गो फॉर एक्स एक्सिस, वाई देन गो फॉर वाई एक्सिस. यहाँ पे देखो एक बार, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल, पूरे में क्या वेरिएबल है, x है. सो दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग इट एज px. हम p से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्रैकेट में x होता है ना, दैट मीन्स व्हाट, द पॉलिनोमियल इज हैविंग वेरिएबल x. And if sometimes we will be having y, then it is like this one, y square minus 2y plus 1 or something. So this is when we are having py. So this p is what? It is the polynomial. देखो पॉलिनोमियल कर्व्स जो होती हैं ना, डिफरेंट काइंड्स होती हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, देखो इफ़ इट इज ऑफ दिस काइंड, अगर ये इस तरह से कर्व बनता है, दैट इज नोन एज व्हाट, पैराबोला. इसको पैराबोला बोलते हैं. ओके, दिस इज पैराबोलिक कर्व. और इट कैन बी ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कहीं पे भी हो सकता है ये, ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है जैसे ये वाला, ठीक है. देन सर्कल भी होता है एक, देखो अगर हमारे पास सर्कल क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से ही बनता है. जो सर्कल होता है ना, यू विल स्टडी इन हायर क्लास अबाउट द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सर्कल, कैसे बनता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज देयर फॉर सर्कल, सर्कल के लिए होता है, बट यू विल नॉट स्टडी इन 10th क्लास, दैट विल बी इन 12th स्टैंडर्ड यू विल बी स्टडिंग अबाउट इफ यू आर स्टडिंग मैथ्स देयर. देन this is parabolic, then this is circle, then hyperbolic is also there. hyperbola कैसे होता है, देखो अगर तुम्हारे पास दोनों साइड एक कर्व ओपन होता है, सपोज दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, इसको हाइपरबोला बोला जाता है. ओके, हाइपरबोलिक. ओके, देन सी पैराबोला इज हैविंग इक्वेशन, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस फॉर्म where two variables are there. then hyperbola की जो इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. एंड देन 1 इज फॉर एलिप्स, एलिप्स भी होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट तुमने सुना भी होगा. एलिप्स क्या होता है, सी व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट इन साइंस दैट योर this Mars, Venus, Earth, like that, they revolve in elliptical orbit. So ellipse is like this one, ऐसे होता है, means like a egg, egg की जो form होती है, this is known as ellipse. Okay, so it is also having a parabolic equation because ये भी cut, sorry, polynomial equation because it is cutting on x axis as well as y axis. इसकी जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. बट दीज थिंग्स यू विल स्टडी इन हायर क्लास, ये चीज़ें बहुत बाद में जाके पढ़ोगे, अभी इन चीज़ों का तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा यूज नहीं है. सो दैट्स वाई यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हाउ मैनी टाइम्स अ ग्राफ इज कटिंग ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड sorry number of zeros of px, and similarly on y axis how many times it is cutting, that is number of zeros for py. So don't go for other things.